کرائم کی سچویشن ہے، اگر ہم اس کو 2012 سے کمپیئر کریں تو پنجاب میں جو کرائم ہے اسٹیٹک رہا ہے۔ ایسے کوئی ایسا کڈنیپنگ اور رینسم کا گینگ نہیں آپریٹ کر رہا لاہور میں جس سے کہ شہریوں کو کوئی پریشانی ہو۔ ہمارے ملک کے بدنصیب شہریوں سے سال 2013 میں جہاں ضروریات زندگی کے دوسرے وسائل چھینے گئے، وہاں انہیں امن و امان کی نعمت سے بھی محروم کر دیا گیا۔ اس دوران ملک کا کوئی بھی ایسا شہر نہیں تھا جسے دہشت گردوں اور جرائم پیشہ افراد کے ہاتھوں سے محفوظ سمجھا جاتا۔ بلوچستان کے سادہ لو عوام ہوں، سرحد کے خوبصورت شہری یا پنجاب کے محنت کش کسان، سب کے سب بے امنی کی زنجیروں میں جکڑے رہے۔ اگر سندھ کا ذکر کیا جائے تو دوسرے بڑے شہروں کے علاوہ کراچی کے مہذب شہری بھی پورا سال جیسے سولی پر لٹکتے رہے، اس لیے کہ یہاں سٹریٹ کرائمز اور بھتہ خوری کے ساتھ دہشت گردی کی کارروائیوں اور بم دھماکوں نے نہ صرف ان کا روزگار تباہ و برباد کیا، بلکہ ان سے کئی نوجوان، بوڑھے، والدین اور کمسن بچے بھی ہمیشہ کے لیے چھین لیا۔ نیا سال ہماری دہلیز پر پہنچ چکا ہے، مگر ہم اتنے دکھی ہیں کہ اس سال کو خوش آمدید بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ پچھلے سال کو بھی خوش آمدید کہتے ہوئے ہم نے اس سے جو امیدیں باندھ رکھی تھی وہ چکنا چور ہو چکی ہیں۔ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال پر نظر ڈالی جائے تو حکومت کے بہت سارے دعوے صرف دعوے ہی دکھائی دیتے ہیں، اس لیے کہ سال 2013 کے دوران پنجاب میں 5,500 سے زائد افراد کو قتل کر دیا گیا اور جرائم کی وارداتوں کے 3.5 لاکھ کے قریب مقدمات درج ہوئے، جن میں ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر 209 افراد کا قتل بھی شامل ہے۔ جرائم کی مزید وارداتوں کے بارے میں دیکھتے ہیں عامر شہزاد اور غالب عباس کی یہ خصوصی رپورٹ۔ صوبہ پنجاب میں سال 2013 کے دوران نہ صرف جرائم کی شرح میں اضافہ دیکھنے میں آیا بلکہ پولیس مقابلوں میں بھی اضافہ ہوا۔ یہاں پر تقریباً آئے روز کوئی نہ کوئی پولیس مقابلہ ہوتا رہا۔ دوسری جانب حکومت اور پولیس حکام کی طرف سے جرائم پر قابو پانے کے دعوے تو کیے جاتے رہے، مگر ان دعووں کے برعکس صورتحال کچھ زیادہ تسلی بخش نہیں رہی۔ پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق رواں سال 11 ماہ کے دوران 347 پولیس مقابلوں کے دوران 315 جرائم پیشہ افراد کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ اس عرصے میں پنجاب بھر میں 5,652 افراد کو قتل کیا گیا۔ اغوا برائے توان کے 112 واقعات پیش آئے، جن میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے سمیت دیگر شخصیات کا اغوا بھی شامل ہے، جبکہ اغوا کے 12,700 سے زائد واقعات ہوئے۔ خواتین سے زیادتی کے 2,300 سے زائد جبکہ اجتماعی زیادتی کے 170 واقعات پیش آئے۔ نرسریز ہیں جو اس طرح کی بےہودہ بچوں کو دکھاتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں، وہ پھر ریپ کرتے ہیں اور بچیاں پکڑتے ہیں، بچے پکڑتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو سوسائٹی کو اس کو پیوریفائی کرنا ہوگا۔ جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کڈنیپنگ کے وہ آلموسٹ ٹریس، تو یہ اب سچویشن وہ نہیں ہے جو آج سے 5، 7، 10 مہینے پہلے۔ سال 2013 کے دوران ڈکیتی مزاحمت پر 200 سے زائد شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جبکہ ڈکیتی، چوری اور سٹریٹ کرائم کے 31,000 سے زائد واقعات رپورٹ ہوئے۔ اسی طرح 23,000 سے زائد شہری گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں سے محروم ہوئے، جبکہ مویشی چوری کے 6,200 سے زائد مقدمات درج کیے گئے۔ اس کے باوجود پولیس حکام پنجاب میں جرائم کی شرح میں خاطر خواہ کمی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جہاں تک کرائم کی سچویشن ہے، اگر ہم اس کو 2012 سے کمپیئر کریں تو پنجاب میں جو کرائم ہے اسٹیٹک رہا ہے، اور لیکن ایک مین ہیڈ مرڈر میں اور رابری میں پہلے سے ہمارے پاس کرائم کی فگر کم ہے۔ پنجاب پولیس کی 1.5 لاکھ کی نفری آخر جرائم کی وارداتوں پر قابو پانے میں ناکام کیوں رہی؟
पंजाब पुलिस की 1.5 लाख से जायद की नफरी के बावजूद पुलिस बढ़ते हुए जराइम पर काबू पाने में नाकाम रही है। सारा साल वीवीआईपीज़ की सिक्योरिटी समेत इस साल पुलिस को आलू और टमाटरों की कीमतें कंट्रोल करने का टास्क भी दिया गया था और पुलिस शहरियों की जानो माल की हिफाजत की बजाय मंडियों में आलू, टमाटर और दीगर सब्जियां हुकूमत के मुकर्रर करदा निर्खों पर फरोख्त करवाने को यकीनी बनाती रही। इंडिविजुअल इंसिडेंट हो जाते हैं, उनको मैं नहीं कहता कि कोई आदमी रूल आउट नहीं कर सकता, उनकी भी डिटेक्शन की तरफ पुलिस की बड़ी एफर्ट्स हैं और हमने उसके लिए डेडिकेटेड टीम्स बनाई हैं जो उस पर काम कर रही हैं। इंशाल्लाह ताला उसमें बड़ी जल्दी ब्रेक थ्रू के चांसेस हैं। पंजाब पुलिस ने साल 2013 के दौरान नाजायज असला रखने के इल्जाम में 40,000 से ज्यादा मुकदमात दर्ज किए गए। डाकुओं और चोरों के 2,000 गिरोह गिरफ्तार हुए, जबकि 90,000 के लगभग इश्तिहारी मुलजमान भी गिरफ्तार किए गए। मगर जराइम की शरह के मुकाबले में पुलिस की रिकवरी आटे में नमक के बराबर ही रही। रिसेंटली हमारे पास 3 टेररिज्म के वाक़यात हुए हैं, 2 लाहौर में और 1 रावलपिंडी में। जिस तरह रावलपिंडी में पंजाब पुलिस ने कुर्बानी देकर और वहाँ पे नुकसान को बचाया है, उसी एफिशिएंसी से और उसी लगन से हम अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे और मुकम्मल कोशिश होगी कि ऐसा कोई वक़ूआ पंजाब में ना हो। लाहौर में इस साल के दौरान कितने अफराद को कत्ल किया गया, डकैतियों की कितनी वारदातें हुई और कितने अफराद को अगवा किया गया। लाहौर में साल 2013 के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 492 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि डकैती और स्ट्रीट क्राइम के 3,500 से जायद वाक़यात हुए। इसी तरह तावान के लिए 37 अफराद को अगवा किया गया। किडनैपिंग फॉर रैंसम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो केसेस हुए वो वर्कआउट भी हुए और अभी पिछले 3 महीने से किडनैपिंग फॉर रैंसम का एक बच्चे का केस हुआ लोअर माल पुलिस स्टेशन में, जो कि अल्लाह ने मेहरबानी की, फौरी तौर पर पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, बच्चा भी रिकवर हुआ और उसकी कोई रैंसम पे नहीं, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सरेदस्त एज सच कोई ऐसा किडनैपिंग फॉर रैंसम का गैंग नहीं ऑपरेट कर रहा लाहौर में जिससे कि शहरियों को कोई परेशानी हो। साल 2013 में लाहौर के शहरियों का भत्ताखोरों से भी पाला पड़ा और शहर के 84 थानों में भत्ता की शिकायत पर 47 मुकदमात दर्ज हुए। 21 मुकदमात को ट्रेस भी कर लिया गया, लेकिन इन हकायक के बावजूद पुलिस हुकाम शहर में भत्ताखोरों के वजूद से ही इनकार करते हैं। एक बात मैं आजकल अक्सर सुनता हूँ कि जी भत्ताखोरी। मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ कि लाहौर में कोई ऐसा गैंग एज सच ऑपरेट नहीं कर रहा जो कि इस घिनौने जुर्म में मुलव्वस हो। यस, आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं जिसमें अगर किसी ने किसी से कोई पैसे मांग लिए, उसकी FIR दर्ज होगी, उसको ट्रेस भी चलेगा, या किसी ने कोई ऐसे फेक कॉल कर दी या कोई फेक SMS कर दिया या कोई कागज़ दे दिया या कोई ख़त लिख दिया। वो मोस्टली उसमें जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें पता चलता है कि जी ये कोई फेक एक्टिविटी थी, कोई ऐसी एक्टिविटी थी जो कि किसी ऑर्गेनाइज्ड गैंग के साथ ताल्लुक़ नहीं रखती थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भत्ताखोरी का कोई ऐसा मामला नहीं है जो कि अगर आप उसको कोट करें किसी और शहर के साथ, अगर आप कंपेयर करना चाहें कि जी कोई ऑर्गेनाइज तंजीम ये काम कर रही है। साल 2013 में जहां लाहौर शहर के मशहूर अनारकली बाजार में 2 बम धमाके हुए, वहीं फिरका वाराना दहशतगर्दी के वाकयात भी पेश आए। इसके अलावा लाहौर पुलिस के लिए गंगाराम अस्पताल में 5 साला बच्ची ज्यादती केस चैलेंज बना रहा और पुलिस CCTV फुटेज, DNA टेस्ट और सैकड़ों मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारी के बावजूद इस केस को हल करने में नाकाम रही। हत्ता के इस केस के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई गई। आदरा को हमने भिजवाए थे बेहतर करके तस्वीर, उसके ऊपर भी अभी तक वो फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर की मदद से कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सके कि आइडेंटिटी इस्टेब्लिश कर सके कि कौन है। उसकी बेसिक वजह तो जो है वो CCTV कैमरास की जो पुअर क्वालिटी है। दूसरे जराइम की तरह लाहौर में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में भी खतरनाक हद तक इजाफा हुआ। लाहौर में इस साल के दौरान स्ट्रीट क्राइम भी खौफनाक हद तक बढ़ा। हजारों शहरी मोबाइल फोन और नकदी से महरूम कर दिए गए। अगवा बराए तवान के 37 मुकदमात में पुलिस ने 26 अगवाशुदा अफराद बाजियाब करवाने का दावा किया। इसके अलावा पुलिस हुक्काम का दावा है कि साल 2013 में जराइम पिछले साल की बनिस्बत कहीं ज्यादा कम हुए हैं। पुलिस, मैं ये समझता हूँ कि सोसाइटी ने अपनी वो टीम जो कि सोसाइटी में से ही है उसको उतारा हुआ है उन लोगों के खिलाफ काम करने के लिए जो कि इस सोसाइटी के रूल्स, कवायद ज़वाबित को नहीं मानते। अब
जिस काम के सिलसिले में हम लोगों से बात करना चाहते हैं कि पुलिस मैन इन फैक्ट इज़ अ सिटीज़न इन यूनिफॉर्म। तो ये पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी चीज़ों को पुलिस करे। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने घर की हिफाजत, उसके अंदर चीज़ों को देखना कि जी गेट की कुंडी लगी हुई है, मोटरसाइकिल खड़ी कर रहा हूँ तो उसका लॉक लगा हुआ है, गाड़ी खड़ी कर रहा हूँ तो इसको मैंने लॉक कर दिया है, इसके अलावा अगर कोई बंदा आ रहा है तो मैं उसकी आइडेंटिफिकेशन करूँ। एंड एट द सेम टाइम बहुत सारी सोशल वॉइसेस, फॉर एग्जांपल अगर नारकोटिक्स है, ये दोनों तरफ से है कि अगर मैं अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख रहा कि वो शाम को कहाँ पे जाके बैठ रहा है, तो उसका जिम्मेदार स्टेट को नहीं ठहराया जा सकता कि वो अगर किसी जगह से कोई ड्रग एडिक्ट हो गया। साल 2013 में ही दहशतगर्दी और फिरका वाराना दहशतगर्दी की वारदातें भी हुई, जिनमें कई अफराद और पुलिस एहलकार भी शहीद हुए। सूबाई हुकूमत का दावा है कि पंजाब में अमन और अमान की सूरत-ए-हाल दीगर सूबों की निस्बत बेहतर है, ताहम अवाम की बड़ी तादाद पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन नजर नहीं आती। देखना ये है कि नए साल में पुलिस जराइम के खात्मे के लिए अमली इक़दाम करती है या फिर दावे और अदादो शुमार के हेर फेर से हुकूमत और अवाम को मुतमईन करने की कोशिश जारी रहेगी। साथी रिपोर्टर आमिर शहजाद के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। पंजाब में साल 2013 के दौरान पेश आने वाले जराइम के वाक़यात और अमन व अमान की सूरत हाल के बारे में आपको तफसील से आगाह किया गया। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। साल 2013 शायद कुछ लोगों के लिए खुशनसीबी का बायस हो, मगर इस मुल्क के ज़्यादातर अफराद को ये रंजीदा और सोगवार करके जा रहा है, इसलिए कि इस साल के दौरान मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पहले की निस्बत ज़्यादा ख़राब रही। कराची के शहरियों का जिक्र किया जाए तो सिवाय दुखों और गमों के उनके हिस्से में कुछ ना आया। देखते हैं कि कराची में इस साल के दौरान जराइम की वारदातों में पहले की निस्बत कितना इजाफा हुआ। उरूसुल बेलात कहलाए जाने वाला शहर कराची अब शहरों की दुल्हन नहीं रहा, बल्कि कई दुल्हनों का सुहाग उजाड़ने वाला शहर बन गया है। इस बदनसीब शहर पर हुकूमत करने वाले और अरबाब इख्तियार रोजाना अमन व अमान की बेहतरी के बयानात तो जारी करते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं। इंसाफ की नजर से देखा जाए तो ये साल गुज़िश्ता साल के मुकाबले में भी अमन व अमान की बहाली के सिलसिले में होने वाली कोशिश के लिए बदतरीन साल साबित हुआ। यहाँ के शहरी एक अनजाने खौफ के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे भी दहशत गर्दों, बम धमाकों, बैंक डकैतियों और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि इस साल के दौरान शहर में मौजूद जराइम पेशा और दहशतगर्द अनासर ने कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को भी अपना निशाना बनाया। हालात की बेहतरी के लिए मरकजी हुकूमत की तब्दीली के बाद माह सितंबर के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन का आगाज तो किया गया, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं। CPLC के आदाद शुमार बताते हैं कि इस साल के दौरान कराची की सड़कों पर तकरीबन 2500 के करीब लोगों से उनकी जिंदगी का हक छीन लिया गया, जो कभी सियासी ग्रुपों की बाहमी लड़ाई और कभी टारगेट किलिंग का शिकार बने। इसी साल के दौरान शहर में फिरका बंदी की बुनियाद पर भी 500 के करीब लोग कत्ल किए गए, जिनमें उलमाए कराम, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और दीगर अहम शख्सियात शामिल थीं। कराची पुलिस के सरबराह शाहिद हयात का कहना है कि बैनुल अक़वामी कुव्वतें पाकिस्तान में फिरका वारिद फैलाने की साजिशों में मसरूफ हैं।
मुहर्रम से पहले जो वाक़यात हुए थे वो आपके सामने हैं, और फिर अभी कुछ वाक़यात हुए हैं। उसमें मैं पहले भी जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि कुछ केसेस हैं जिसमें हमें ये शवाहिद हैं, हम ये समझते हैं कि वो सेक्टेरियन नहीं है और उसके पीछे कोई और रीज़न्स हैं, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो चाहते हैं कि इधर सेक्टेरियनिज़म बढ़े, तो वो परहैप्स वो इसमें इन्वॉल्व हैं। इस साल के दौरान कराची के इंतहाई अहम इलाके लियारी में अमन व अमान की क्या सूरत हाल रही, देखते हैं कि लियारी के साथ क्या सलूक हुआ। लियारी का इलाका अमन व अमान की बदतरीन सूरत हाल के बाइस साल भर खबरों की शह सुर्खियों में रहा। सूरत हाल उस वक्त मजीद खराब हो गई जब लियारी गैंग वॉर के एक ग्रुप ने कलदम पीपल्स अमन कमेटी के मरकजी रहनुमा जफर बलोच को कत्ल कर दिया और इसके बाद गैंग वार के मरकजी ग्रुप के 2 धड़े बन गए, जिन्होंने एक दूसरे के कारिंदों को चुन चुन कर अगवा करने के बाद कत्ल करना शुरू कर दिया। साल 2013 के दौरान सिर्फ लियारी में 260 से ज्यादा अफराद कत्ल किए गए। लियारी के बारे में कराची पुलिस के सरबराह का कहना है कि वो लियारी में क़याम अमन की कोशिशें कर रहे हैं। उनका कहना है कि कराची में जारी ऑपरेशन के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सबसे ज्यादा छापे लियारी में मारे गए। रेड्स मेरे ख्याल में अगर किए गए हैं तो लियारी में किए गए हैं। वी आर ट्राइंग जी, हम कोशिश अपनी पूरी कर रहे हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान कभी करीब चीज़ों के पहुंच जाता है लेकिन हाथ से निकल जाती हैं, तो हमारे साथ कई बार ऐसे हुआ है। तकरीबन मेरे ख्याल में 30 लोग तो एनकाउंटर्स में मारे जा चुके हैं, जो कि रेंजर्स के साथ और पुलिस के साथ हुए हैं लियारी में। पुलिस के सरबराह का ये भी कहना है कि लियारी में देर पा अमन कायम करने के लिए वहाँ पुलिस की मजीद चौकियाँ तामीर की जा रही हैं। अभी हमने जो है तकरीबन कोई 7 पिकेट्स उधर इस्टेब्लिश किए हैं पुलिस और रेंजर्स ने मिलकर, और अभी हमारा और है तकरीबन कोई 20 पिकेट्स हम टोटल ये करेंगे, और इंशाल्लाह विद इन दिस वीक उम्मीद है या मैक्सिमम बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक हम ये पिकेट्स इस्टेब्लिश कर लेंगे। वो इस्टेब्लिश करने का मकसद ये है कि हमारी एक्सेसिबिलिटी जो है एरिया में वो ज़्यादा हो जाए, हमारी पेनिट्रेशन ज़्यादा हो जाए, और हम हमारी मूवमेंट जो है जो पहले से प्री जज वो कर लेते हैं, वो हमारी मूवमेंट को प्री जज ना कर सके। हम जब उधर बैठे होंगे तो हम ईज़िली उनके खिलाफ मूव कर सकेंगे। न सिर्फ अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब रही, बल्कि इस साल के दौरान कराची के शहरियों को अपनी हज़ारों गाड़ियों से भी महरूम कर दिया गया। कराची के शहरियों को इस साल के दौरान 4073 गाड़ियों से महरूम कर दिया गया, और इसी अरसे के दौरान 20,800 मोटरसाइकिलें भी उनसे छीन ली गईं या चोरी कर ली गईं। इस साल के दौरान शहरियों से 19,000 के करीब मोबाइल फोन भी चोरी किए गए या छीन लिए गए। एडिशनल आईजी कराची शाहिद हयात कहते हैं कि ऑपरेशन के आगाज के बाद से शहर में जराइम की वारदातों में वाज़ेह कमी आई है, और मुस्तकबिल करीब में कराची शहर के बासी जारी ऑपरेशन के नताइज भी देख लेंगे। मोटरसाइकिल छीनना, मोबाइल फ़ोन छीनना, मोबाइल फ़ोन जो है सबसे कम नवंबर में और प्रोग्रेसिवली कम हुआ है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में सबसे कम। मोटर बाइक छीनना, मोटर बाइक चोरी सबसे कम, गाड़ियाँ सबसे कम। एक्सटॉर्शन की कंप्लेंट्स जो हैं मार्क 200 का फ़र्क आया है। सितंबर से पहले 3 महीने अगर आप देख लें, सितंबर के बाद देख लें, 200 का फ़र्क आया है उसमें। डिटेक्शन हमारी 60% हो गई है एक्सटॉर्शन में। तो अगर कोई आ रहे हैं उसके बावजूद, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं आ रहे होंगे, ठीक है, आ रहे होंगे, बट हमारा काम जो है 60% मेरे ख्याल में किसी भी क्राइम में अगर डिटेक्शन हो रही है, काफ़ी डिटेक्शन है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक 5 सितंबर से जारी ऑपरेशन में शहर भर से 6,500 जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 3,500 इश्तिहारी और मफरूर मुल्ज़िमान भी शामिल थे। हमारी जो एडमिशन्स हुई हैं जेल में 5 सितंबर के बाद वो तकरीबन 6,500 के करीब है। एग्जैक्ट नहीं, ऊपर नीचे 100 हो सकता है। 6,500 के करीब एडमिशन्स हुई हैं जेल में, ठीक है जी। और मैंने पहले भी आप लोगों को अर्ज़ की थी कि 3,500 के करीब वो लोग थे जो कि पीओज और एब्सकॉन्डर्स थे जो हमने पकड़े थे। कराची के कितने बदनसीब शहरियों को कत्ल किया गया
اور کتنے پولیس اہلکاروں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ قتل و غارت گری کے سلسلے میں بھی سال 2013 پاکستان کی تاریخ کا بدترین سال رہا۔ اس سال 2500 افراد کو زندگی جیسی نعمت سے محروم کر دیا گیا اور اسی عرصے کے دوران 160 سے زائد پولیس اہلکار اور افسران بھی دہشت گردی کا نشانہ بنے، جن میں سے 50 سے زائد اہلکار سائٹ ایریا اور ویسٹ زون میں قتل کیے گئے۔ کراچی پولیس کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ان کارروائیوں میں مذہبی انتہا پسند ملوث ہیں۔ ریلیجس ملیٹنٹس آپ کو پتہ ہے وہ ہیں، وہ پولیس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، انہوں نے کیا بھی، ان کے کچھ ہم نے بندے پکڑے، کچھ مارے گئے، اور کئی اور جگہوں پہ بھی پولیس والے ہٹ ہوئے ہیں۔ اور پولیس والے جو ہیں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا اسپریڈ بڑا ہے، وہ دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، کوئی ملیر میں ہے تو کوئی اورنگی میں ہے، تو ٹریول کرنا پڑتا ہے ان کو، تو ظاہری بات ہے ان کو ایزی ہوتا ہے ہٹ کرنا۔ بٹ ہمارا کوشش یہی ہے کہ جو بھی اس میں ہوں ان کو ہم چھوڑیں نہیں اور ان کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں اور انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ سال 2013 میں اغوا برائے تاوان اور بھتہ خوری کی 1430 وارداتیں ہوئیں۔ پولیس کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ اس سال 72 اغوا کار گرفتار ہوئے اور 24 مختلف مقابلوں میں مارے گئے۔ اس دوران 126 بھتہ خور بھی قانون کی گرفت میں آئے اور 2 پولیس مقابلوں میں مارے گئے۔ لیکن ان تمام تر کارروائیوں کے باوجود شہر میں امن کا خواب ہی لگ رہا ہے۔ پھر بھی نئے سال کی آمد کے موقع پر شہر میں قیام امن کی امید کے ساتھ حالات کی بہتری کے لیے دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ کیمرامین عاطف قریشی کے ساتھ سالک شاہ، سما، کراچی۔ صرف سال 2013 ہی کیا، کراچی کے شہریوں کے لیے ہر آنے والا سال انتہائی بری خبروں کے ساتھ طلوع ہوا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والا سال ان کے لیے کیا پیغام لے کر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے cs@sama.tv۔ اس کے علاوہ فیس بک اور ٹویٹر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بینا خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے سما۔